Question number 7. Find the unit vector in the direction of the vector. Vector A is given, or you will find your unit vector of the direction will be same with given vector. Clear it not? The first means you will write here what is the given vector here. A tell me I plus A plus 2K. This is the given vector. First we will find the unit vector. What is the unit identity of the unit vector here? Unit vector. Unit vector is denoted by the a cap. Understand now? This is denoted by the a cap. So then unit vector of equal to vector A upon magnitude of vector A. Clear now? So how to find out the unit vector? So vector A upon magnitude of the vector A. So this means you have required the magnitude of this vector. Suppose you will divide any vector, the same vector magnitude, then find the unit vector of the. Clear? So then the first one find here what is the magnitude of this vector through what is the coefficient of the I 1 plus coefficient of J 1 coefficient of K 2 square. What is you get here? 2 is here 4 5 4 5 6 root 6 1 plus 1 plus 4 here. This is the root 6. Done. The unit vector what you find here unit vector in the direction of given vector. You are finding here unit vector which direction of the given vector. Clear now? So what is the unit vector here? This equation A is equal to vector A upon magnitude vector A and the period of this I plus J plus K upon what value is root 6. This is right here 1 upon root 6 I 1 upon root 6 J plus 2 upon root 6 K. Very not. So this is your answer. Any problem here? Clear it? According to this, every time you are going to find the unit vector, which direction you find? Given direction or other directions? Clear? Clear or not? Yes, now down it. Yes, question number 8. Find the unit vector same in the direction of the vector PQ. In this vector, in the question number 7, vector already given here. And you are finding the unit vector that given direction of the given vector. Next, question number 8, give direction of the PQ where P and Q are the point, any coordinate of the P and Q are given here. So first of all you find the position vector of PQ, then you find the magnitude of the PQ. First you will find the position vector of PQ, then you will find the magnitude of PQ, and then you find the unit vector of the PQ. Done it? Now start solution. Suppose this vector, this is the initial point, this is the PQ. Clear? What coordinate of this? What coordinate? 1 2 3. And next 4 5 6 10. The PQ of the vector PQ equal to how to find it? PV of Q minus PV of P. How to find it? X2 minus X1 I plus y2 minus y1 j plus z2 minus z1
K. Done it? This one x1, y1, z1, x2, y2, z2. Done it? So what will your x2 here? 4 minus 1 I plus 5 minus 2 j plus 6 minus 3 k. Done it? What value of the k here? 4 minus 1 3 I plus 5 minus 2 3 j plus 6 minus 3 k. Done? So this is your value of the vector PQ. What things you find of the unit vector of the given vector? This is a given vector here. Unit vector, same process of the question 7. Clear? How to find it? Magnitude of the vector PQ. What value of this? Square of 3 plus square of 3 plus square of 3. 4 minus 1 3, 5 minus 1 3, 6 1 3. So what value getting here? 3 3 is 9 plus 3 3 is 9 plus 3 3 is 9. What answer get? 9 3 is 27. Answer? Root 27. Root 7 is square of 9 3 is 27. 3 root 3. This one to 3 root 3. Yes, now look here. So unit vector of PQ in the direction of vector PQ. Unit vector of PQ in the direction of the PQ direction बोला ना, क्वेश्चन में पूछा था कि कुछ डायरेक्शन में PQ डायरेक्शन निकालना है. But then what will be here? Then we can write here this is equal. So PQ vector PQ upon magnitude of vector PQ. Done it? What will be of the PQ here? 3i 3i plus 3j plus 3k upon 3 root 3. Being separate here, 1 upon root 3 I plus 1 upon root 3 j plus 1 upon root 3 k. Clear? This is your answer. So this is the unit vector in the direction of the given vector. इसको इस स्टेप में छोड़ देना, इसको सेपरेट करके रखना. डायरेक्शन ये आपकी डायरेक्शन क्या है? 1/√3 1/√3 1/√3 क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? हाँ, डायरेक्शन. व्हाट नेम ऑफ दिस? डायरेक्शन क्या होती है? कोसाइन रेशियो. रेशियो करेक्ट. हाँ, डन. समझ में आ गया? इन्हीं को हम डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं. अगर हम कहीं जरूरत पड़ती है तो एलिमेंट की वैल्यू कहीं निकालना चाहो तो इनकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 11. So that the vector is given here, two vector given here, and you will satisfy the vectors are collinear. What do you mean to collinear first? Tell me quick. Let vectors, suppose let ABC is given here. No. Let vector A here. Tell me quick. 2i minus 3j plus 4k and vector B here minus 4i plus 6j minus 8k. There are two vectors given. I am left. Suppose yes, this is the name of this vector is A, so this vector name is B. You assume as P, Q, R, this is not matter. Good. Clear? First thing, this vector are collinear. This prove that this. What do you mean the collinear vector? Tell me first.
suppose this vector and this vector, this is direction this and this is direction this. Suppose this vector A first and this is vector B. If these two vectors having the magnitude different, then collinear or not? First, true and false questions. If two vectors having the different magnitude, then it will be collinear. Say yes or no? Yes. In which condition here? First, collinear condition means they will be parallel. Direction and magnitude, whatever, this is not matter. What is the direction? What is the magnitude? This is not matter. What is the direction? This is not matter. But they will be parallel. Like suppose this vector or this vector, this small vector, this is a large vector, but these both are the collinear vector. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें कोई इफेक्ट नहीं कर सकता. आप एक ही डायरेक्शन में भी हो सकते हैं. अब देखो ये जब वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो जाती है तो वो इक्वल वेक्टर हो जाते हैं. जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर हो जाएंगे. परंतु अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन तो क्या है? सेम है, बट इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो इक्वल तो नहीं हो सकते. तब क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे. कोलिनियर तब भी हैं, वो पैरेलल वेक्टर नहीं होते, कोलिनियर वेक्टर होते हैं. मतलब अगर ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए में यहाँ आपका 10 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपका सपोज यहाँ पे 5 है, तो ये वेक्टर इक्वल नहीं है. दीज वेक्टर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर. क्लियर? इक्वल होने के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है. फर्स्ट कंडीशन कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, तब वो इक्वल हो सकते हैं. अगर इनमें से एक चीज़ भी नो हो गई तो इक्वल नहीं होंगे. तब क्या हो जाएंगे? वो कोलिनियर हो जाएंगे. इट इज क्लियर नॉट? डन. अब हमने यही करना है. ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इस वेक्टर में कोलिनियर है या नहीं. और जो कोलिनियर कंडीशन आपके वेक्टर की है वो यह है. व्हाट इज द कोलिनियर कंडीशन? अगर कोई वेक्टर हमारे पास a है इक्वल लैम्डा b या b है इक्वल लैम्डा a है, मतलब a और b में ही तो इक्वेटिंग करेंगे. वेक्टर a इक्वल टू लैम्डा b हो जाए या वेक्टर b इक्वल टू लैम्डा वेक्टर a हो जाए, यानी उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, सेम टू दिस इज नॉट मैटर. क्लियर? बट तो अगर हम इस कंडीशन में देखें तो वेक्टर b इक्वल टू अगर मैं कहें तो -4i प्लस 6j माइनस 8k. यू आर टेकिंग व्हाट थिंग्स आर टेकिंग कॉमन है? 2 माइनस टेकिंग कॉमन है तो 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस 4k. दिस इज माइनस बिकॉज माइनस एंटी कांसेप्ट प्लस माइनस and minus is plus. What will come here? -2 lambda. What will be of this? Sorry, -2 वेक्टर a. तो समटाइम ये कभी कंडीशन नहीं हो सकती, कोई कंडीशन नहीं होगी. दो वेक्टर में इक्वेशन कर रहे हैं, कंडीशन कुछ हो सकती है. ये नहीं कि b हमेशा इक्वल आना चाहिए या a ऐसा आना, ऐसा कुछ नहीं. कोई भी कंडीशन आप इंप्लीमेंट कर दे. तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू किसकी हो गई? वेक्टर a की हो गई. तो वेक्टर a इक्वल टू -2 लैम्डा वेक्टर a. व्हाट विल बी द लैम्डा? सो लैम्डा इक्वल टू -2. यह जो लैम्डा यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, जीरो नहीं होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है? नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए आपके पास. फ्रैक्शन डेसिमल दिस इज नॉट मैटर, पर नॉन जीरो होना चाहिए. नेगेटिव पॉजिटिव दिस इज नॉट मैटर. व्हाट इज द लैम्डा हियर? लैम्डा हियर कांस्टेंट नॉन जीरो रियल नंबर्स. डन इट? डन इट सिद्धि? कुछ समझ में आ रहा बेटा? तो कोलिनियर कंडीशन इज क्लियर नॉट? कोलिनियर के लिए हमें डायरेक्शन इक्वल करने की, मैग्नीट्यूड इक्वल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. डन? डन इट? नेक्स्ट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 हियर. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर. वेक्टर हियर गिवन और व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस? क्वेश्चन नंबर 12. Suppose this is the vector a here given, left.
This one is the vector A. Vector A. What is this? I plus 2G plus 3K. Check this thing. See? I plus 2J plus 3K. Or you will find the direction cosine of the vector. What is the direction cosine of this vector? Or what do you mean the direction cosine? डायरेक्शन कोसाइन का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? डायरेक्शन एंगल से ही डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं, नहीं करते हैं? अब जो एक्चुअली क्या था, अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अल्फा होता है आपका एक्स एक्सिस का, बीटा होता है वाई एक्सिस से, और गामा होता है हमेशा जेड एक्सिस। ये फिक्स है, ऐसा नहीं कि कभी अल्फा उधर चल जाएगा अल्फा इधर आ जाएगा, ठीक है? ये डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्शन एंगल जो होते हैं आपके अल्फा बीटा गामा, उन्हीं से हम डायरेक्शन कोसाइन, जब हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं तो कोसाइन बन जाते हैं, ठीक है ना? जब अल्फा बीटा के साथ हम कॉस ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे। डन? वो अलग चीज़ नहीं है, डायरेक्शन से ही डायरेक्शन कोसाइन बनते हैं। और डायरेक्शन आपकी क्या है कि अल्फा बीटा गामा हमने एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड के साथ हमने जो लिए थे, उनकी वैल्यू जब कॉस के फॉर्म में फाइंड करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। डन इट? अब आपके पास क्या है? आपके पास यहाँ पे व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो? आपको एक आइडेंटिटी मैंने जो रिलेशन बताया था डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का, वहाँ पे आया था ना? क्या क्या आया था? क्या पहले तो हम करते हैं लेट डायरेक्शन एंगल विद direction angles alpha, beta and gamma with respect to axis, x-axis, y-axis and z-axis। इतना समझ आ गई बात? इसमें क्या प्रॉब्लम इसमें? अब हमारे पास एक प्रश्न क्या है कि L इक्वल टू व्हाट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस, पहले आप निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, तो नाउ इक्वेटिंग ऑफ दिस। अब यहाँ पे ABC, ये तो हमने यहाँ ऑलरेडी कर दिया, इसमें क्या रखेंगे? कुछ और नहीं, वेक्टर P करना है इसको, वेक्टर P, क्योंकि AB से हम यहाँ ले रहे हैं डायरेक्शन रेशियो में। क्लियर? डन? अगर A करूँ तो यहाँ XY Z कर देते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम, जिस पे A रहने देते हैं इसको कर देते हैं X। व्हाट वैल्यू ऑफ द X हियर? 1। y की वैल्यू कितनी है? 2। और z की वैल्यू कितनी है? 3। डायरेक्शन रेशियो ABC भी ले सकते हैं और XY Z भी हमने यहाँ पर कर दिया अकॉर्डिंग टू एक्सिस है, ठीक है? तो इसमें हमने क्या फॉर्मूला बताया था? L इक्वल टू x अपॉन तो क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और m व्हाट वैल्यू ऑफ द m? y अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z square, and what will be again? Z upon root x square plus y square plus z। और डायरेक्शन कोसाइन को हमने क्या बोला था? जब कोसाइन की वैल्यू एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम? डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है? सॉरी, तो L की वैल्यू कितनी जाएगी? cos अल्फा, क्योंकि L क्या आपके पास एक्सेस के साथ होता है। L इक्वल टू हमने L इक्वल टू बताया था, L की वैल्यू क्या होती है? cos अल्फा के साथ होती है। क्लियर? cos अल्फा इक्वल व्हाट वैल्यू ऑफ द x है? 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9 ऐसे cos बीटा। व्हाट वैल्यू ऑफ द cos बीटा? 2 अपॉन सेम हियर 1 प्लस 4 प्लस 9 and cos gamma z, what will be z? 3। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 9। एनी डाउट यार? ये रिलेशन बताया था ना आपके पास? अल्फा बीटा का हम स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, cos अल्फा cos बीटा को L M N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट वैल्यू ऑफ द L यार? cos अल्फा। N की वैल्यू होती है cos बीटा, और इसकी वैल्यू होती है cos gamma। Done? After that
You solve it. What will be here? 1 by 9 14. 13. 1 2 3 है ना, 1 2 3 check the direction potential correct or not? Go. Correct it. Cos gamma equal to 2 upon root 14 and cos gamma equal 3 upon root 14. So this is the value of your direction cosine. डायरेक्शन देखो नहीं, जैसे डायरेक्शन कोसाइन जाएगा ना, कॉस में ये भी फाइंड करते हैं डायरेक्ट डायरेक्शन को चेक दिस आंसर पे क्विक चेक इट करेक्ट और नॉट. इट इज करेक्ट ना. Any problem in these questions, first of you learn the concept of the direction cosine direction ratio. Suppose your concept is clear, then no problem solving the questions. But concept is not clear, then what you have to find what is this, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा. तो सबसे पहले हमने बताया था कि डायरेक्शन जो रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन का जो हमने रिलेशन बताया था उसी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया. ठीक है, रेशियो हमने ये ले लिया, डायरेक्शन रेशियो है, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड, या कभी कभी इसको ए बी सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने ए ऑलरेडी यहाँ ले लिया था, मैंने यहाँ पर फिर ए ले सकता है. ठीक है, तो ए क्या करेगा, या A1 A2 A3 कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. क्लियर, पर समथिंग चेंज. अब हमें क्या, हमें पास एक डायरेक्ट आइडेंटिटी है, L इक्वल टू क्या है, L क्या है, L ABC क्या है डायरेक्शन रेशियो, और XYZ क्या है यहाँ पे, सॉरी XYZ क्या है यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, और LMN क्या है डायरेक्शन कोसाइंस ना. तो L की वैल्यू चाहे हम उसको L बोलेंगे cos अल्फा बोले बात नहीं की है, एक ही चीज़ है. X एक्सिस के लिए L रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जैसे cos अल्फा बोले एंगल के फॉर्म में निकालना है तो cos अल्फा हो जाएगा. अगर हमें दूसरे फॉर्म में निकालना है, अब हमें यहाँ एंगल के फॉर्म में निकालना है तो डायरेक्शन पूछिए आपसे, डायरेक्शन पूछिए तो आप डायरेक्शन एंगल. डन. Question number 12 is clear or not? Any doubt in this question? No. Did this? No.